just let's do a quick introduction. We have okay. We can start. Sorry, we can start from Aman. Introduction, please. Hello, Namaskar. Myself Aman Rajwashu, uh, pursuing a Bachelor of Arts from University of Allahabad last year, and also currently co-author of AU The Sangam of Thoughts. Thank you. Nanda. Hello everyone, my name is Nandan. I am from Hyderabad. My startup company is Preceptors Education Services Private Limited, where PhD faculties are different leaders who come to the schools of 9th, 10th, plus 1 and plus 2 and make them to know what is the reality of the subject. Thank you. Okay, thank you. Sejal. Am I audible? Yes, yes. Okay. Good evening, everyone. My name is Sejal Jain and I'm currently working as country manager in learning while traveling. I have completed my graduation from Tirthankar Mahavidya University. Thank you. Thank you. Ravi. Hi everyone, this is Ravi Kumar from Bangalore. I am marketing professional, expertise into building automations and IoT products. Thank you. Hari. Hi everyone, good evening. My name is Hari Kutti and I'm currently working with National Chromatography. We are mainly into HPLC consumables that cater to pharma industry. So I have around 9+ years of experience into B2B sales. Okay, thank you. Atul sir, please. Sorry, so I forgot what is the topic we're talking about. Introduction सबका. मैंने तो इंट्रोडक्शन दिया बट ठीक है. तो मेरा प्लान है कि नहीं इंट्रोडक्शन जो पहले करते थे अपने बारे में. हाँ अपने बारे में. तो मैं अभी एक कंपनी चलाता हूँ रेन वेंचर्स और 3-4 नॉन प्रॉफिट चलाता हूँ IIM सोसाइटी, यंग एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क एटसेट्रा एटसेट्रा. और दैट्स इट. और हेल्थ केयर और एजुकेशन के फील्ड में काम करता हूँ. Sure. Saurabh. Hi everyone, I'm Saurabh. I am a failed corporate professional and average entrepreneur. My hobby is to sell. Thank you. Thank you. Okay, so I think we can get to the stories of pivoting, and then we can actually derive questions from that. So Saurabh wanted to share something on pivoting. 3 months, 4 months, I think they were doing something else, and then they moved to what they're doing now. मैं तो भूल ही गया था. Okay. So when we started, clear देखो, we wanted to build a Zomato of optical stores. So हम लोग ने 1500 optical stores across I think 16 cities we had listed on a web portal. एंड वहाँ पे रिव्यूज, रेटिंग, क्या क्या प्रोडक्ट रखते हैं, मतलब जैसे जोमेटो में मेनू रहता है उसी तरह हमने हर स्टोर के कैटलॉग को लिस्ट कर दिया था. एंड we planned to push customers to optical stores and take a cut on the sales, something what Zomato and all these aggregators do. This was the plan and we had listed also, and this was the first idea we had pitched to one of our angel investors, and उसने जो हमें पहला चेक काट के दिया था वो इस आइडिया पे दिया था. लेकिन within couple of months or 3 months down the line we shifted to e-commerce, and within 3-4 months or 5 months of running e-commerce we shifted to retail. So we have been pivoting. Yeah. So इतना 3 महीने में ये decision, how that happened, like this fast changing, मतलब how was this motivation happening? तो मैं थोड़ा सा इंस्टिंक्ट वाला बंदा हूँ. सो मुझे इंस्टिंक्ट आ जाता है आफ्टर डूइंग समथिंग फॉर कपल ऑफ मंथ्स कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, एंड आई स्विच. तो मैंने स्विच किया और मुझे लगा कि रिटेल चलेगा.
तो रिटेल में आ गए, या वो नहीं चलेगा तो बहुत इंस्टिंक्टिव डिसीजन था, बहुत ज्यादा सोच समझ के नहीं किया था। हमें गैप दिखा रिटेल में, हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखा रिटेल में, एंड वी जस्ट पाउंस्ड अपॉन इट। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सोच समझ के किया था। वी वांटेड टू डू समथिंग इन ऑप्टिकल फील्ड बिकॉज ऑप्टिकल फील्ड में कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर कर नहीं रहा था बजट सेगमेंट में, एंड वी थॉट व्हाई नॉट क्लियर देखो, एंड so we thought we wanted to create a dent in the universe of optical, and I think we are slowly and steadily going towards that. Mm-hmm. Sejal have a question or comment? Yes. So just out of curiosity, why this clear देखो, like ये name का idea कहाँ से आया आपको? Unmute. Okay. So सेजल, हम लोग एक हिंदी नाम देना चाहते थे बिकॉज वी वर टारगेटिंग द बजट सेगमेंट, तो इसीलिए देखो was the most appropriate word for vision, and clear was something which was going into it. और ये लोगो मैंने खुद ही बनाया था, ये लोगो आपको दिख रहा होगा। तो बहुत लोग इसे उल्लू बोलते हैं, कुछ लोग बर्ड बोलते हैं विद चश्मा, सो आई वी डोंट रियली नो कि ये उल्लू है कि क्या है। एवरीबडी हैज इट, लोग अपने आप इसका मीनिंग निकालते हैं, बट वी वर वेरी क्लियर कि वी वांटेड टू हैव अ हिंदी नेम, हाफ हिंदी होना चाहिए था, तो इसीलिए हम लोग ने देखो रखा, एंड आई थिंक क्लियर उसके साथ जा रहा था, एंड अब आई थिंक सब कुछ क्लियर दिख रहा है हमें। शुरू से ही बहुत सही हमने सेम नाम था, एज इन लाइक जब वो जोमेटो वाला रिव्यू कंपनी थी। हाँ, वो भी उस समय भी क्लियर देखो ही था। बहुत सारा सोच रहे थे, देख क्लियर, क्लियर देख, क्लियर विजन, बहुत कुछ सोच रहे थे। फिर वी जीरो डाउन इनटू हिंदी रखना चाहते थे हम, क्योंकि हम मास को टारगेट कर रहे थे, प्लस वी वांटेड अ एब्स्ट्रैक्ट लोगो, इसीलिए हम लोग ने ये बर्ड चुना। हम लोग ये नहीं चाहते थे कि चश्मा बना दें या कुछ आंख का कुछ बना दें, हम वो नहीं चाह रहे थे बिकॉज हर कंपनी वो कर रही थी। So we thought we'll have a completely different abstract logo, and this is how it was. मतलब बहुत ज़्यादा thought नहीं दिया था. We were more excited about doing something of our own. जब हिंदी नाम रख रहे थे, so I think one thing can go in the thought process that if you're using a Hindi name, getting global, going global maybe not so simple in that regard, right? Now it's a Hindi name. So just I mean, although it can happen like Sarana Bhavan and all, कुछ का होता है, but तो ऐसा कुछ थॉट था कि I mean, अगर हिंदी नाम रख दिया ग्लोबल का सोच, ग्लोबल का हम लोग सोचे नहीं थे, बट हाँ बहुत लोग बोलने लगे कि तुम अगर बाहर खोलोगे, यूएस में खोलोगे और इधर और उधर खोलोगे तो क्लियर देखो वुड नॉट सूट, बट हम लोग ने ज्यादा सोचा नहीं था तब तक। जब तक लोगों ने हमारे बारे में बात करना शुरू किया तब तक हम 20-40 स्टोर खोल चुके थे, तो तब तक तो सब कुछ हो चुका था, तो वो सब सोचा नहीं है। अगर कंपनी में दम रहेगा, प्रोडक्ट में दम रहेगा, ब्रांड में दम रहेगा, तो कोई भी नाम से चल जाएगा बाहर। अगर दम नहीं रहेगा तो आप हिंदी में नाम लिखवा लीजिए, बंगाली में नाम लिखवा लीजिए, रशियन में नाम लिखवा लीजिए, अगर दम नहीं रहेगा तो रशिया में भी नहीं चलेगा। तो द फोकस इज ऑन प्रोडक्ट, द फोकस इज ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, द फोकस इज ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो ये तो लेट्स से यू स्टार्टेड विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एक रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि लोग उस पे आ सके और चश्मे का दुकान का रिव्यू देख सके, and they can choose and buy. So from there to let's say going to e-commerce, then going to retail. So e-commerce to retail may still be related. That okay, e-commerce है तो चलो उसका retail भी कर देते हैं so that it's easy to sell. But this review to e-commerce, that from doing the review of like kind of an aggregator to a seller, right? तो उसमें थोड़ा सा एक चीज what I think can happen is there might be differences in the team when you are doing this pivoting. So did you face, I mean, what do you think about this
scenario, like when there might be differences between co-founders or even investors and things like that. सारे लोग यूनिसन में सिंक किए, मतलब was it easy to convince everyone within a day or two? I think necessity is the mother of invention. हम लोग सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अब आया है मेरे और मेरे पार्टनर के बीच. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. मैं लेफ्ट सोचता हूँ, वो राइट सोचता है, व्हिच इज गुड. इनिशियल डेज में वी वर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, और जहां अपॉर्चुनिटी मिलता था हम दोनों का माइंड उस तरफ चलने लग जाता था. तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स नहीं था. लास्ट कपल ऑफ इयर्स, इट हैज बीन ऑलमोस्ट 4 years. तो लास्ट कपल ऑफ इयर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा हो गया है, व्हिच इज गुड, व्हिच पुशेस मी. मेरा पार्टनर मुझे पुश करता है टू थिंक एंड आई पुश हिम. So we take our own decisions, and for example, मुझे पता भी नहीं था, बट लास्ट वीक हम लोग ने फार्मेसी में चश्मा लिस्ट कर दिया. आई डिडंट शेयर द पिक, बट लास्ट वीक हमने एक केमिस्ट के शॉप में चश्मा हमने रख दिया, काउंटर सेल्स करने की कोशिश किया. दिस वाज नॉट डिस्कस्ड बाय माय पार्टनर, एंड बट आई अप्रिशिएट कि कुछ नया चीज हम सोच रहे हैं. तो अगर वो मुझसे पूछता तो हो सकता है मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता, मैं बोलता हूँ क्यों मेडिकल में डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, पर हमने कर दिया. तो हम इतना सोचते नहीं है. अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम कर देते हैं, एंड देन अगर इफ इट इज लॉजिकल एंड इफ इट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, फाउंडर ओपिनियंस डजंट मैटर. और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन गोल तो मेरा और मेरे पार्टनर का सेम है. if it is in if we are doing something which is contributing to the organization goal, I don't think कि difference of opinion होगा. अगर होगा भी तो we'll sort it out ourselves. तो ऐसा बहुत ज्यादा कोई difference of opinion हम लोग ने face नहीं किया है. We are working towards a common goal, and yeah. Sure. Okay. And anyone has any comment or question on this so far? Yes, Ravi. Okay, so difference of opinion with audible, right? Yeah. So difference of opinion with respect to the co-founders होता है खास करके तब जब आप 3-4 लोग या भी 2-3 लोग हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं. इसलिए तब ज्यादा होता है क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो सामने वाले को पता ही, मतलब काफी टाइम के बाद पता चलता है कि करना क्या है या फिर कर क्या रहा है, हाउ थिंग्स इज हैपनिंग. एक तो होता है कि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि दिस आई वांट टू डू, लेकिन जो हाउ पार्ट होता है ना, हाउ पार्ट जो फिगर आउट करता है हम लोग स्ट्रैटेजी लेके और उस जब फ्लोट करता है तो बहुत टाइम ये आता है कि आप उसको समझ रहे हैं पर सामने वाला उसको समझ नहीं रहा है, या फिर मतलब उसको ब्लैंक दिख रहा है, ही इज नॉट लुकिंग एट आउटपुट. तो डिफरेंसेस आने लग जाते हैं. पर लेकिन वही है कि एट द टाइम व्हेन रिजल्ट्स कम्स आउट, सो ऑल फॉल इन द सेम सिनेरियो और सेम रिजल्ट्स, लाइक वन रिजल्ट्स कम्स इन, सो ऑल fall on the same mission and vision. Sure. Anyone else want to say something on this or ask something? Okay. So let me also narrate our story. अच्छा, Sejal, yes. सौरभ सर, मतलब अगर आपको क्या लगता है, अगर आप ये जॉब एक्सपीरियंस के बाद नहीं करते और इंस्टीड जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन करते, तो देयर वुड बी सम डिफरेंस? ऑब्वियसली अगर मैं जॉब एक्सपीरियंस के बाद नहीं करता, क्या हुआ कि मैंने ना जॉब में बहुत सारे फेलियर्स विटनेस किए, एक्सपीरियंस किए, and that made me what I am, whatever little bit I have achieved. It is the reason of the good and the bad experiences which I have had in corporate life. बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत सारी गलतियां करें, उन गलतियों से सीखा, which I don't repeat in my company. And since I have been an employee also and a bad employee, and now I am an employer, so I can understand the employee perspective also, which is very important. तो अगर आप मेरे ऑफिस में आएंगे, so मेरे ऑफिस का जो कल्चर है ना, that is, मतलब you will see the positive vibes coming through everyone. That is because I have seen the negative vibes and the positive vibes when I was working. So I try to reduce the negativities in the organization, try to think from an employee point of view. तो अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद मैं उतना अच्छे तरीके से सोच नहीं पाता.
So I think working in corporate has definitely helped me. और अगर मैं स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज क्लियर देखो शुरू किया होता तो आई थिंक हो सकता है क्लियर देखो बंद हो चुका होता. तो मैं कोई भी डिसीजन को रिग्रेट नहीं करता हूँ. इवन इफ आई फेल्ड इन समथिंग, आई नो कि उस फेलियर के वजह से मेरे को सक्सेस मिलेगा 2 दिन बाद. तो ये क्वेश्चन मेरे लिए वन वे आंसर है. मैं कोई भी पास्ट के डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करता हूँ. तो जो मैंने अभी का डिसीजन लिया है, आई कंप्लीटली accept it and I have taken benefit from it. So basically आप डिसीजन लेते हो उसके बाद सोचते हो, मतलब उसके बाद उसे राइट बनाते हो. You don't think I'm taking right decision or wrong. नहीं, that is not what I said. I think and take decision, but I don't regret if my decisions is bad. I learn from it and I move on and I ensure कि वो same mistake मैं. Yeah, he doesn't regret. That's what he means. Exactly. और इसमें एक और चीज ऐड और करना चाहूंगा. लाइक डिसीजन इसलिए सर मायने रखता है क्योंकि जब हम उस समय जब डिसाइड करते हैं तो हम लोग उस समय के लिए तो राइट डिसीजन लेते हैं ना. हमें नहीं पता कि 1 साल बाद क्या होगा या फिर फ्यूचर में क्या होगा, बट जब हम उस टाइम पे लाइक मुझे अभी क्या करना है तो अभी के लिए तो मैं राइट डिसीजन लूंगा ना सर. तो आई थिंक तो इसलिए मुझे हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए जितना मुझे लगता है कोई भी डिसीजन पे, क्योंकि हम उस समय के लिए वो राइट ही रहता है. और क्योंकि रॉन्ग हम लोग कभी लेते नहीं, और पास्ट और फ्यूचर में क्या होने वाला वो हमें पता ही नहीं है. Ujjwal, you want to ask a question? सर सौरभ सर आपसे 2 क्वेश्चंस थे मेरे. मतलब कि एक तो मतलब मैक्सिमम कितने पर्सन होना चाहिए कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हो, कि कितने फाउंडर को फाउंडर होने चाहिए. और दूसरा ये क्वेश्चन था सर कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन का माहौल क्या, सराउंडिंग क्या होना चाहिए. फॉर्मल कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि इनफॉर्मल हो रहा है, कि मेरे ख्याल से फॉर्मली ज्यादा करोगे नहीं तुमको ये करना है ये करना है तो लोगों के अंदर बड़ी पिंच टाइप की होती है. लोग सोचते हैं कि मुझे नौकर समझ लिया. और कम्युनिकेशन इनफॉर्मल में प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग दोस्त समझने लगते हैं तो फिर तुम्हें ट्रीट ऐसा करेंगे जैसे तुम्हारे दोस्त हैं और वो काम नहीं करेंगे या बटरिंग करनी पड़ती है. तो ये प्रॉब्लम्स आती है. तो सर इसका सॉल्यूशंस क्या होंगे या कैसे आप करते हो मतलब सब चीजों का. सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूँ. मैं डेली रात को मतलब पिछले 1 हफ्ते से तो मैं डेली रात को 10 बजे आ रहा हूँ क्योंकि कोई मुझे ऑफिस से जाने नहीं दे रहा है. वी आर सेलिब्रेटिंग एंड हैविंग डिनर एंड ड्रिंक्स एंड पार्टीज एवरी डे. अभी भी मैं 10 बजे आया बिकॉज वी वर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट बर्थडे ऑफ माई एम्प्लॉइज चाइल्ड. कल पार्टी हुई थी बिना किसी रीजन के, परसों पार्टी हुई थी शायद किसी का बर्थडे था, कल फिर पार्टी होने वाली है बिकॉज मेरा जो रिटेल हेड है उसके बेटे का आज बर्थडे है, उसकी मदर का आज बर्थडे है. तो मेरे यहाँ बहुत फ्रेंडली एटमोसफेयर है. मेरे यहाँ कल्चर बॉस और सबऑर्डिनेट का नहीं है. आई एम एबल टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ मेंटेनिंग दिस रिलेशनशिप. सो इट इज एंटायरली अप टू एन इंडिविजुअल. आप एक ऑटोक्रेटिक बॉस बनना चाहते हो, आपको उससे काम निकलवाना है, दैट इज ऑल्सो राइट. आप एक फ्रेंडली बॉस बनना चाहते हो, उससे काम निकलवाना है, दैट इज ऑल्सो राइट. हम लड़ते हैं. येस्टरडे आई वाज मेरे और मेरे सेल्स हेड में क्वारल हुआ और उसने बोला कि सर यू डोंट लाइक मी, आप रिजाइन कर रहे हो. मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, उसने ये बोला एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. एंड टुडे वी वर अगेन बॉन्डिंग वेल एंड वी वर डिस्कसिंग कि यार तो उसको सैलरी का रेस चाहिए. तो ये सारी चीज डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे, यू हैव टू फिगर आउट द बेस्ट वे टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ योर एम्प्लॉइज. यू हैव टू फिगर आउट द वे कि आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं. तो मेरे यहाँ तो बहुत ही फ्रेंडली कल्चर है. हम लोग टीटी खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं. मुझे याद है कि हम लोग सैटरडे को गाजियाबाद में लॉकडाउन था तो मैंने सारे एम्प्लॉइज को बुलाया एंड देन वी प्लेड क्रिकेट इन ऑफिस. 1-1 हैंड क्रिकेट खेल रहे थे. आई स्कोर्ड अ सेंचुरी ऑल्सो. तो बहुत ही अच्छा कल्चर है. एंड चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, एवरीबडी, मतलब 10-10 बजे तक लड़कियां भी रुकती हैं, गिटार बजाते हैं हम लोग. तो बहुत ही हैप्पी एटमोसफेयर है. तो हमें लगता है कि इस एटमोसफेयर से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है. ये मेरा थिंकिंग है तो मैं ऐसे रखता हूँ. नाउ कमिंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि
कितनी बड़ी टीम एक फाउंडर या 2 फाउंडर संभाल सकते हैं। मेरे में 2 को फाउंडर हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस मैं देखता हूँ, मेरा जो को फाउंडर है वो फंड रेज और HR और लीगल ये सब देखता है, तो मेजॉरिटी टीम मेरे अंडर है। तो ऐसा नहीं है, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं टीम नहीं संभाल पाऊंगा तो आई हायर अ CEO और वो संभालेगा। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी कि वो 10 लोग की टीम संभाल सकता है या 50 की टीम संभाल। बहुत सारे क्रिकेट कैप्टन्स होते हैं जो 11 की टीम ही नहीं संभाल पाते हैं, और बहुत लोग होते हैं कि क्रिकेट कोच बन जाते हैं और एक बड़ी सी टीम संभालते हैं। सो इट इज एंटायरली, नहीं मम्मी रुक जाओ, कॉल पे हूँ। एंड सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी कि वो 10 की टीम संभाल सकता है कि 100 की टीम संभाल सकता है। इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। दिस इज सर एक और छोटा सा व्हाट क्वेश्चन सर। सॉरी डिड आई सर, आंसर योर क्वेश्चन? या आई गेट योर आंसर, आई गेट माय आंसर सर। एक क्वेश्चन था सर कि लाइक सर जैसे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट बना के उनके हेड रखना ज्यादा बेटर है कि सब अपने पे ही ले लो कि सब तुमको ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं? लाइक हम लोग, मतलब मेरा प्लान था कि डिफरेंट पार्टनर लाइक टेक्निकल ऑफिसर्स अलग कर दो, HR अलग कर दो, या कुछ फाइनेंस वगैरह आ रहा है तो उसका अलग डिपार्टमेंट बना लो और सबके हेड टाइप में रख दो कि देन तुम्हारे पास कुछ इतना नहीं आएगा, तुम्हारा केवल काम रहेगा कि आइडिया प्रोड्यूस करो या कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को लाना वगैरह टाइप। तो सर इसमें क्या कहना है आपका? आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ एम्पावरिंग पीपल। जब आप लैडर में ऊपर चढ़ते हैं ना, हायरार्की में ऊपर चलते हैं, so when you join a company you need 90% technical skills or domain skills and 10% people skills. But when you are at a C level या founder level या director level या team leader level या head of the department level, you need 90% people skills and 10% technical skills. So I'm a big believer of this and I like to delegate and empower people. मैं बहुत ज्यादा नहीं लेता हूँ। जैसे आज मैंने e-commerce टीम, होम टीम और रिटेल की 3-4 टीम है, उन सबके साथ बैठा, आधा घंटा मैं सेल्स हेड के साथ बैठा, मैंने टारगेट्स डिस्कस किए, इंसेंटिव डिस्कस किए, दैट्स इट। अब मैं 15-20 दिन तक उनका शक्ल भी नहीं देखूंगा। आई लेट देम डू देयर वर्क। 15-20 दिन बाद एक मिड मंथ रिव्यू होगा जिसमें वेयर आर दे ऑन टारगेट्स, और फिर हम वहां पे डिस्कस करेंगे। आई डोंट लाइक टू माइक्रो मैनेज, तो मैं डेलीगेट करता हूँ और मैं एम्पावर करता हूँ। छोटे छोटे चीजों के लिए अप्रूवल मेरे पास मांगने के लिए जो आते हैं, आई डोंट लाइक दैट कल्चर। So I give them liberty, I give them authority, I give them ownership and they deliver. और मेरे यहाँ जितने एम्प्लॉयज, अगर मैं रात को 3 बजे भी कॉल करके ये बोलूंगा ना कि ऑफिस आ जाओ, वो आ जाएंगे सारे के सारे, इवन गर्ल्स। सो दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर वी हैव बिल्ट एंड वी एम्पावर आवर टीम। और हमारे में कोई, मैंने जैसे बोला, बॉसिज्म वाला कल्चर ही नहीं है। सो आई एम देयर फ्रेंड, दे आर माय फ्रेंड्स एंड वी एंजॉय एंड वी वर्क आल्सो। सो दिस इज व्हाट आई। Yes sir, thank you sir, I get down all my answers. Sure. Any other question? Anyone have comment question? So just let me narrate a small first product of ours that we had to change, or not change exactly, it became a lower priority. तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा क्या था? It was pretty much visit the college before taking admissions. So, or even for motivation. So if you want to get yourself motivated, you visit all the premier institutes at a young age. So you can be more serious about your preparation. ये था मॉडल। और प्लस ये भी था कि आपको जहाँ एडमिशन लेना है, शादी करने जैसा हमने बोला कि आप एक बार जाके पार्टनर को देख लो, बिकॉज 4-5 साल वहाँ रहना है। सो यू शुड डेफिनेटली सी द कॉलेज and mix with the students and see the infrastructure and blah blah, and so it's like a 4-5 घंटे का trip, and this can be clubbed with let's say whenever you travel. So let's say if you go to Delhi, you can visit IIT Delhi. If you go to Bombay, we can add additional half-day exploration trip for IIT Bombay and things like that. तो ये इससे स्टार्ट किया था हमने, and we in fact did a
IIT tour to actually hire ambassadors और जो भी interns to execute this trip. तो वो हमारा employee side हो गया था, intern side हो गया था. हर जगह जाके दो चार लोग को हमने हायर किया, जा के इनफैक्ट, क्योंकि नए थे तो ऑब्वियसली कोई यकीन करता नहीं रिमोटली अगर हायर करते तो pretty much जा के वहाँ स्टूडेंट बॉडी से बात करके, ईसीएल से बात करके हमने बोला कि है ना बच्चे को दे दो, कुछ स्टूडेंट को दे दो हमें. तो वो हो गया. और मतलब एक दो ट्रिप कराया भी हमने, 2-4 ट्रिप कराया भी हमने जिनको करना था. बट देन वी आल्सो रियलाइज दैट एक्चुअली इंडियन जनता हैज बिकम वेरी लेजी. सबको ऑनलाइन ही चाहिए सब चीज, और कोई ट्रैवल करके जाके एक्सप्लोर करना नहीं चाहता. सब लोग चाहते हैं कि इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा एक दो बच्चे से कॉल कर लेंगे और पता चल जाएगा. तो फिर थोड़ा सा ये हो गया. उसके लिए ऐप भी बनवाया हमने कि इट कुड जस्ट कनेक्ट सीनियर जूनियर स्टूडेंट्स, and we onboarded lot of ambassadors from different colleges, so that it was pretty much kind of like Soro wala hi thoda sa Zomato jaise hi tha, but it was pretty much you could visit that store to find out, and there will be like our representative who will help you explore and give you all this information. But जैसा था कि ना मार्केट एक्सेप्टेंस हुआ नहीं उस प्रोडक्ट का. और फिर ये 4-5 महीने चला. इनफैक्ट कोटा भी गए थे हम लोग, वहां भी 2 महीने रहे. सिनेमा में भी प्रमोशन किया. तो क्या ना क्या किया, मतलब ना हर जगह लाखों निकल ऐप बनाने में लगा. फिर कोटा के सिनेमा में प्रमोशन किया. फिर ऐप भी बनवाया. ऐप के लिए लाइक IIT टूर करके ऑनबोर्ड भी किया हमने. तो जो भी था 5-6 महीना, पहला 4-5 महीना इसमें गया. बट वही अगेन रियलाइज कि ये वाला चीज नहीं चल पाएगा. और अभी आई थिंक मे बी जनता इज नॉट रेडी फॉर दिस. सो फिर हमने भी उसको पिवट किया. और फिर दैट्स वेयर आवर सेकंड प्रोडक्ट गॉट इन, द इंटरनेशनल स्टार्टअप एनरिचमेंट टूर. तो उसमें फिर हमने then we started obviously doing our own events, and then later again we pivoted कि अपना इवेंट ना करें. स्मॉल पिवट बोल सकते हैं कि अपना इवेंट ना करके लेट्स जस्ट स्पॉन्सर इवेंट्स, कि ऐसे अपना इवेंट भी करेंगे और उसको प्राइज भी देंगे, और जिसको प्राइज देंगे उसको फॉरेन भी ले जाओ. तो इवेंट का खर्चा अलग है. तो हर इवेंट पे हमारा 1 लाख 1.5 लाख खर्चा हो जा रहा था. फिर हमने बोला इतना क्या करना है, इससे अच्छा इवेंट तो ऑलरेडी होता रहता है स्टार्टअप का, तो लेट्स जस्ट स्पॉन्सर दिस इवेंट्स. तो वैसे करके ना वो एक माइनर पिवट बोल सकते हैं. तो हमने उसको फिर एसेट लाइट किया धीरे धीरे. और पहला ट्रिप में हमने ऑलमोस्ट पूरा ही ट्रिप दे दिया था फ्री. और बट लोगों को लिया, लाइक IIM कैलकाटा से लिया, IIT KGP से लिया था, IIT मद्रास से ले गए थे किसी को, IIT बॉम्बे से कोई आया था. तो थोड़ा क्वालिटी मेंटेन किया. बट देन वी आल्सो रियलाइज कि पूरा का पूरा ट्रिप देना इज आल्सो अ लॉस मेकिंग वेंचर. तो इसको थोड़ा सा कम किया जाए. तो देन वी जस्ट शिफ्टेड टू फ्लाइट टिकट ओनली. तो उसके बाद हमारा हुआ कि फ्लाइट टिकट रहेगा 20,000 का, बट 40,000 उनको देना होगा. सो काइंड ऑफ 60-70% मतलब 20-30% डिस्काउंट जैसा करेंगे. तो उसमें हमारा फिर दूसरा ट्रिप हुआ 70 लोगों का. सो द मॉडल केम टू लाइक थ्रू आउट द ईयर वी ऑनबोर्ड पीपल फॉर दिस इंटरनेशनल ट्रिप, एंड देन वी एग्जीक्यूट द ट्रिप इन द समर. तो ऐसे चला. एंड देन द स्केलिंग प्लान वाज कि वी विल एक्चुअली डू दिस इन ऑल द कंट्रीज. ठीक है. तो अब ऑल द कंट्रीज, तो जैसे कि पहला बार बैंकॉक हो गया, दूसरे बार सिंगापुर हो गया. तो इस बार हमारा प्लान था जर्मनी, लंदन एंड सिंगापुर. सो 10-10 लोग का, 20-20 लोग का, जितने भी लोग होंगे, 50 लोग का, 100 लोग का, जिस बजट में लोग होंगे उनको बेसिकली विल मैप टू that thing, and we'll also give a bit of a scholarship to some people based on this competition. तो ये था. और ये भी हमारा मतलब बैंकॉक हो गया, वो फ्री वाला चीज हो गया, और डिस्काउंट वाला हो गया सिंगापुर. इस बार हमारा प्लान था ऑलमोस्ट ब्रेक इवन करने का, कि कोविड हाईजैक कर लिया हमें. तो फिर हमने फिर से पिवट किया थोड़ा सा. तो उसको अगेन बाय पिवट आई मीन वी नेवर ड्रॉप्ड द प्रोडक्ट एज सच. वो है अभी भी, और वो अगले साल शायद रिज्यूम भी कर लेंगे हम लोग. बट हम लोगों ने फिर ये ई लर्निंग का स्टार्ट किया कि लेट्स मेक इट अ ई लर्निंग काइंड ऑफ थिंग, वेयर वी कैन हैव सम काइंड ऑफ स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज ये GDP. ये तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ एवरीडे नेटवर्किंग इवेंट. एंड देन वी हैड दिस इंग्लिश, एंड देन द बच्चों वाला जो स्कूल है वो स्टार्ट किया. सो दिस इज आवर पिवट जर्नी. So our journey is a bit different from Soro की इसने तो पूरा ही चेंज कर दिया ना. हमने पूरा चेंज नहीं किया. हमने बोला कि इसको अभी लोअर प्रायोरिटी पे रखते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि ये तो 1 साल तक
हो नहीं पाएगा शायद ये ट्रैवल वाला, और पहला वाला भी तो नहीं हो रहा था, तो उसको भी रखा है, उसको भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि फोन कॉल एंड ऑल वी कैन डू दिस. So this is briefly asked. Anybody has any question on this, please? सर इसमें मतलब एक क्वेश्चन था, सॉरी सर. तो सर इसमें मतलब जो आपने ट्रैवलिंग वाला बताया, तो इसमें कॉस्ट तो मतलब कि एज अ मिडिल क्लास तो ये मेरे ख्याल से कोई परचेज ही नहीं कर पाता होगा. ये क्या मतलब कि बस हम एलीट पर्सन्स के लिए होता है कि या कुछ जो जिनके पास बहुत ज्यादा नहीं पैसा है वो भी आ सकते हैं आपके इवेंट्स में? नहीं, तो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया कि एक अपर मिडिल क्लास एटलीस्ट, लोअर मिडिल क्लास तो नहीं आ पाएगा फॉरेन ट्रिप के लिए, तो था 50,000-40,000 टाइप्स का खर्चा था. बट देन वी थॉट कि इसको अगर AICTE से अप्रूव करवा ले, सो लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इंजीनियरिंग और MBA कैन डू दिस एज एन इलेक्टिव, तो उनको लोन दिला देंगे, इसका कुछ EMI निकाल लेंगे. ये फ्यूचर प्लान था, बट जो हमने ट्रिप वगैरह कराया था, सो ऑलमोस्ट सबका 40-50 हज़ार खर्चा हुआ था. वो पेइंग कैपेसिटी जिनका नहीं है वो नहीं आ पाते उसको. ये ओके ओके. रवि, आपका भी कोई एक्सपीरियंस? In business, I'm very new, not much old. Okay, just 1.5 year. So Yeah. we have started with the Hari, product you which have- is already in their market. Yes, Hari, you have comment question? Excuse me, Ravi ji, I just have one question to ask with Vishal sir. Yes. Are you not audible? Yes, Hari, please. Yeah, audible? Yeah, now you're audible. Yeah. So I was having one question, like in your startup, learning while traveling, में होता है यहाँ पे? Last sentence What क्या is बोला the आपने? learning that you are providing? Oh, what is the learning? So what we in our Yes. trip usually we do this kind of group discussion, and then we do this kind of group discussion not like with me. We actually tie up with local colleges, local B schools, local chamber of commerce, एक local conference से भी tie up कर लेते हैं. तो वैसे करके करते हैं और कुछ competition भी कर देते हैं. So it's kind of a summer camp kind of thing बोल सकते हैं आप. Right. Yeah. Okay. Yeah. Yes, Nandan, please. Sir, I will answer the Hari's sir questions more elaborate. What was the trip is? It would be an 10 to 12 days of trip to a Singapore, where in the Singapore we are going to go. We are going to visit 3 to 4 colleges and their entrepreneurs, and going to interact with them and interviews with them and the workshops with them, and there will be a 2 day of international global summit around on the time of around 10 days. It would be the nice opportunity to visit there and come here, like it's an learning while traveling, the Singapore version of entrepreneurship. I think Hari sir asked this question, like what would the process in the Singapore, what would the tour would be for the entrepreneurs? The itinerary, right? Yes. Yeah. So anyway, let me do a bit elaborate actually. So first thing people will do is they will come to Kolkata and we'll have a 1-day boot camp in IIM Calcutta. ठीक है, ये पहला चीज होगा. फिर probably we'll take a midnight flight and we will do a business plan contest on the plane itself. So the idea is just use pen and paper and make a business plan while while at the airport and taking the plane, and then once you get down from the plane you give the business plan back to us, and then we have prizes for the best business plan that is made. ठीक है, तो we call this B plan on the plane activity. The एक और activity होता है हमारा, it's interviewing Singaporeans, so like what Nandan was saying. So that's basically you have to take you have to talk to say like local people, non-Indian people,
So it becomes more of a communication exercise, and take their videos and submit to us, and then we give points accordingly, and then people who do maximum number of videos they win the competition every day kind of. Then एक और चीज होता है, एक साइट सीइंग कंपटीशन भी कराते हैं हम Do you लोग, तो have उनको any eligibility? सॉरी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ रखा है? नहीं, तो एलिजिबिलिटी दो तरह से है ना, देखिए 40,000 कॉस्ट है प्रोग्राम का, 40,000. सो नंदन इज वन ऑफ द डेलीगेट एक्चुअली, so that's why he can tell also those things. So Okay. 40,000 is the Yeah. price plus flight ticket. Yeah. No, Hari sir is asking how Eligibility, how right? Yeah. Yeah. When we So go to- eligibility, I'm telling. So eligibility, anybody can join, but the scholarship, not anybody can get. Yes, sir. Hari Yeah. sir is asking how the eligibility is occur. Like I got from the IIT Hyderabad. Like Yeah. IIT Hyderabad is conducting a workshop. From there, I got the opportunity. Hari sir is asking how the process would be. Yeah. So we have two things. One is you either participate in our partner events. That is like Nandan said, he participated in one college event in Hyderabad. And the other thing is just apply online. So either way you can enter. So as और फिर जब enter हो जाएगा तो then we based on the application strength we just offer scholarship जो भी दे सकते हैं हम लोग, और then we just we take a token money initially deposit, and then we take the full money by March, and June usually we execute. ऐसे, so anybody can join that way. It's just about how much scholarship you can get. That's where the eligibility comes actually. Otherwise anybody can join. No filtering as such. Okay. So even anyone, like even any entrepreneur can also join. Yeah. People have joined, like there has been direct. Actually जो direct join करता है ना, वो हमारा profitable sale है. जो scholarship ones is actually a bit loss making. So it's pretty much like a plane where the dynamic pricing works. So you can think of this as a dynamic scholarship scheme. So the one seat of the plane goes for 3,000, and the last seat of the plane goes for 10-12,000, right? But overall plane becomes profitable. So this is the same with us. So overall our delegation has to become profitable. This is the aim. And there is a dynamic scholarship assigned to people depending on their application strength. And ऐसा हो जाता है ना कि let's say like Nandan won, but then there were another 10 people, 20 people who didn't win. तो उनका क्या? So they can apply online, or they can directly enroll. So this is how we create our marketing also, that give one or two people a bit extra scholarship so that they influence the other people, and then we onboard them through our online medium or another event like. So, and एक और चीज रहता है, even if let's say Nandan couldn't go for that matter, let's say he didn't have the money, but at the end it creates an inspiration in everyone that someday I will go. So when you can't go because of like Anand Kumar of Cambridge offer, so he didn't go to Cambridge, right? Anand Kumar, jo Super 30 ka story, but he showed that Cambridge offer to everybody. Yes. Even the movie was made on that Cambridge offer. So you see that so our offer is like that Cambridge offer. Super 30. Yeah. So our offer is like that Cambridge offer actually. So everyone will feel proud to have that. And some people might be able to redeem that depending on एक मैं आपको एक छोटा सा एक शेयर करके दिखाता हूँ. So if you see the screen, it will appear. So this was an event by Times now, Times Times of India. So the people who are carrying that certificate, ये certificate का क्या होगा? आप सोचिए, आपको मिलेगा हरी जी, तो आप क्या करेंगे उस certificate का? कहाँ लगाएंगे उसको? सूटकेस में रख देंगे या ड्राइंग रूम में सजाएंगे? क्या है सर्टिफिकेट? देखा, अच्छा फ्लाइट टिकट है. ये जो फ्लाइट टिकट है, इसको कहाँ रखेंगे आप बताइए? रख नहीं सकते, फ्लाइट पे ट्रैवल करना पड़ेगा. नहीं, ये सर्टिफिकेट ये तो डमी है. This we give to everybody. This we give to everybody. Okay. Then they have to pay and redeem. Okay. So this is like a discount coupon, you can say. A big discount coupon. Okay. तो ये कहाँ सजेगा आप बताइए मेरे को? Where would you put this? If you won this somewhere?
study room, right? In your drawing room, study room कहीं, if you are a student, probably in your drawing room, that देखिए मेरा बच्चा जीत के आया है, आपके पापा बोलेंगे ना सबको, Right. पैसा नहीं था मेरे पास भेजने का, लेकिन मेरा बच्चा जीत के आया. So this is a lifelong branding of our product, right? So everybody knows कि there is some company who is giving this scholarship, and event का क्या फायदा होता है ना कि when they show this kind of certificate, lot of people come to their event. So there is a win-win situation. Nobody loses anything, and even if the people cannot go, still it's a win for us because they actually feel sad not to go. ठीक है, तो वो aspiration trigger कर देना ही हमारा main aim है, and that aspiration can convert to a sale or may not convert to a sale also, a discounted sale or a profitable sale or no sale. Either way, the aspiration is triggered. तो यही चीज है. Right. तो इससे क्या होता है ना कि हमारा डील भी बड़ा इजीली हो जाता है. इतना बड़ा डिस्काउंट कूपन कोई देता नहीं है, राइट? डिस्काउंट कूपन क्या होता है? 200 400. BMW का डिस्काउंट कूपन नहीं मिलेगा आपको कहीं. किसी भी इवेंट में नहीं मिलेगा इंडिया के. एग्री? Yes. तो हमने यही किया, हमने BMW का डिस्काउंट कूपन निकाल दिया. तो वो भी BMW के लोगों के साथ. तो it becomes a very, this was our strategy: branding, marketing, customer acquisition, all three things in one go. And यही है. Anyone has any question on this? ये actually अपने में एक this can be a whole branding marketing strategy class on this. कि कैसे हमने किया इसको. Yes, Ravi, please. Yes. So Vishal, when the feedback session was going on 2 days ago, 3 days ago, I said at the statement for you, like you're a person who look the things and then you try and do it. Like you place everything and try and do it. See, when I joined this group in the beginning, I went through all your programs and details. Okay. And this is what I perceived out of that. Exactly you are replicating today, like describing today. नहीं, पूरा रेस, I mean, I don't know कि पूरा, but थोड़ा सा तो देखना ही पड़ता है. But ये जैसे पहला ट्रिप was all free, right? तो that time I was not thinking. मैं सीधा देख रहा था अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि अगर मैंने अभी नहीं किया तो साल भर बाद करूंगा, और साल भर बाद में मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा. सटासट करो. जुलाई में हमने प्लान बनाया करने का, जून में, और अक्टूबर में एग्जीक्यूट कर दिया फर्स्ट ट्रिप. और वही था ना, पहला बार पैसा नहीं देता कोई, राइट? तो हमने बोला कि पूरा एकदम जियो सिम जैसा फ्री पकड़ाओ सबको. अब मुझे देखना है कि मना कौन करेगा. कोई मना नहीं किया एक्चुअली. फ्री जब देना शुरू किया तो सब फॉरेन ट्रिप के लिए रेडी हो गए. तो यही था इनिशियल कैप्चर. Vishal, just a suggestion. Yeah. See, in most of the let's say the MBA colleges whose fees beyond 10 lakh, okay, they offer this kind of trips through the college itself. Correct. So do you partner with them also? Yeah. So if you see our partner list na, it's all IITs, all IIMs, Narsi Monji, Triple IIT, सारे को पकड़ लिया. All the known MBA colleges, they have this into the admission fee itself. They offer that there will be a trip of maybe 10 days, 12 days to sing out of country. Yeah, correct. So, but see, that MBA college, then you just mingle with the MBA, your own people, right? How do you mingle with other IIMs, let's say, for example? How do you mingle with other pan-India level? So, it's one level up, that networking. तो वैसे हो जाता है. मैं बोलना चाहूंगा विशाल कि हमने जो बहुत ज्यादा समय दिया है, बिताया इसी पे कि नए IIM जो हैं, IIM सिरमौर या रांची या तो इवन अब जम्मू में भी खुल गया है, तो उनको पुराने IIM से जोड़ने के लिए जो हमने IIM सोसाइटी पे बहुत ज्यादा समय लगाया, 10-15 साल से लगाया है. और उसके अलावा उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए IIM फैमिली एंड फ्रेंड्स में, कि आप भी जुड़े हुए, और भी लोग जुड़े हुए हैं, कि IIM के अलावा कल को मैं हार्वर्ड वाले को बोलना चाहूंगा, चलो तुमको भी IIM से जुड़ना है, आ जाओ. MIT वाले को हो या किसी को भी, फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो या अनपढ़ भी हो, तो वो भी जुड़ना चाहता है. तो फ्रेंड एंड फैमिली वाला आइडिया मुझे बहुत ही पावरफुल आइडिया लगा कि एक तो कोर ग्रुप केवल आपका अपना है, क्योंकि मैंने कैट क्लियर किया है, तो बिना कैट का शॉर्टकट मारना ठीक नहीं होगा. लेकिन कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनको जोड़ना चाहता हूँ, तो कम्युनिटी सोशल सर्विस उनको भी मैं
वाइडर कम्युनिटी जोड़ सकता हूँ। तो आई थिंक वो आइडिया जैसे आपने जो बताया ना कि आपने सारे कॉलेजेस को जा जाके किया, तो वही है कि इस इंक्लूजन माइंडसेट, अगर मैं इसमें मैंने आर्टिकल भी लिखा है कि लोगों को कैसे आप जोड़ सकते हो, तो प्रॉपर तरीके से बिना IIM या IIT की डिग्री ले, मैं किसी को IIM IIT की डिग्री बोल रहा हूँ तो ठीक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरे लोगों को कैसे इस कम्युनिटी का पार्ट बनाया जा सकता है। सेम का मैंने सैनिक स्कूल में भी किया है, जो रवि जी है, कि सैनिक स्कूल के फ्रेंड्स एंड फैमिली बना दिया है, कि सैनिक स्कूल के अपने माँ बाप भाई बहन किसी को जोड़ना चाहते हो। तो आई थिंक ये मुझे लगता है इंक्लूजन वाला माइंडसेट काफी आज के जमाने में अपील कर रहा है लोगों को। सही बात है। आई थिंक सो अतुल सर का जितना सारा, लेट्स से अतुल सर हैज 10 ग्रुप्स, राइट? Just imagine, our trip is taking people from all those 10 groups and taking them for a, like 1 week, 10 days trip. So it becomes a very, very like a niche crowd kind of, very dynamic, मतलब है ना, जिनको वो नेटवर्किंग का मौका नहीं मिला। ऐसा नेटवर्किंग आपको कॉन्फ्रेंसेस में मिलेगा, वो भी सारे कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में भी नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस में ही मिलेगा आपको ऐसा नेटवर्किंग। जो पैन इंडिया, अगर पूरे इंडिया को यूनाइट करना है ना आपको, तो उनको आपको फॉरेन ले जाना होगा। दिल्ली का भी कोई इवेंट होगा तो इट विल नॉट हैव पीपल फ्रॉम पैन इंडिया, नाइदर मुंबई इवेंट और एनी इवेंट। सो तो हमारा जैसे सिंगापुर कर देते हैं ना हम, तो अब सिंगापुर के नाम पे सारे लोग कोलकाता आ जाते हैं पहले तो। अदरवाइज कोलकाता का पूरा ट्रिप भी हम देते हैं ना, तब भी नहीं आता कोई, मतलब बहुत लोग नहीं आते तो वही सिंगापुर के नाम पे सारे कोलकाता आ गए पहले, तो कोलकाता का इकोसिस्टम बूस्ट, और सेकंड लेवल सिंगापुर तो है ही फिर, और पूरा ये ना वही IIM वाला ही फंडा है एग्जैक्टली, कि पूरा इंडिया को एक जगह करो, बट उसमें कैट वाइट क्लियर करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल कर दिया हमने, यही है। और बच्चों वाला भी वही कर रहे हैं ना हम लोग, बच्चे वाले में तो बाहर वाला ही को ले आ रहे हैं। अब ट्रैवल नहीं करा सकते तो उनको इनबाउंड कर रहे हैं विया ऑनलाइन, कि आप जूम के माध्यम से आ जाइए और सब बच्चा लोग को पढ़ाइए। मेरे घर के बच्चे, बाहर के बच्चे, सबको बचपन से ही इंक्लूसिवनेस सीख लेंगे सारे लोग। और यही प्रॉब्लम थी, मैंने लिखा भी था लिंक्डइन पे एक आर्टिकल, कि कॉलेजेस में जो ग्रुप बनते हैं ना, कॉलेजेस में ग्रुप बनते ही इसलिए है क्योंकि 12-15 साल आपका अपने काइंड के साथ इतना घुल मिल हो जाता है कि you cannot accept anything which is not your kind. So by force you can be mixed, but otherwise you will not mix by your own volunteer thing. But if you are given that exposure from the very childhood, then you start to mix. तो कहीं ना कहीं हमारा वो e-learning जो है, तो वो बच्चा लोग बड़ा होके मेरे ये सिंगापुर ट्रिप, ये वो ट्रिप सब जगह आएगा। पेरेंट्स पहले से ही ये हो जाएंगे ना, I mean comfortable हो जाएंगे हमारे साथ So that's the whole idea. That's why learning while traveling. So now it is e-learning while traveling. नहीं, और विशाल उसी में पॉइंट है कि पूरी दुनिया जो फिजिकल वर्ल्ड में मिलती थी, क्लास में मिल रहे, स्कूल में मिल रहे, कॉलेज में मिल रही है, उसके जगह अब दुनिया आजकल मिलती कहाँ? व्हाट्सएप पे मिलती है, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे या ऑनलाइन। तो उस केस में ई लर्निंग का इंपॉर्टेंस, आपका जो मॉडल बहुत ज्यादा अपील करेगा लोगों की। सोशलाइजेशन भी ऑनलाइन हो रहा है और ट्रैवल हो रहा है, तो ग्लोबल वाला पार्ट भी। ट्रेडिशनल जो मॉडल है कि नहीं, ट्रैवल का भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। कितना भी आप यूट्यूब देख लो, बट आप साउथ अफ्रीका या ब्राजील कहीं जाने का जो मौका मिला, वो आप यूट्यूब वीडियो के थ्रू नहीं कर सकते हो। तो वो लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग का मॉडल कंबाइंड विद द डिजिटल, ये दोनों मेरे ख्याल से डेडली कॉम्बिनेशन है। करेक्ट। तो वो अब जिसके पास जैसा पैसा है, जैसा उज्जवल ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, राइट, कि गरीब लोग क्या करेंगे, तो गरीब लोग ई लर्निंग में आ जाएंगे, और जिसके पास जैसा पैसा है वो उससे ट्रैवल कर ले। जिसके पास थोड़ा कम पैसा है तो IIM बैंगलोर चला गया, अगर हमारे साथ इवेंट में IIT बॉम्बे चला गया। थोड़ा सा ज्यादा पैसा है तो सिंगापुर आ गया, उससे ज्यादा पैसा है तो लंदन आ गया, उससे भी ज्यादा पैसा है तो अगर US का कराएंगे, कनाडा का कराएंगे तो उसमें आ जाएगा। तो दिस वे, आई मीन अभी ये हमारा जो ई लर्निंग से वी आर प्रीटी मच गोइंग टू केटर all income groups, whichever income groups need that global exposure, either online offline जो भी है। and I don't know आगे चल के गवर्नमेंट ग्रांट्स या कुछ I don't know some scholarship स्कीम आ गया या कुछ, और अगर किसी इन्वेस्टर वगैरह से भी टाई अप हो गया तो maybe they might also join hands to because this our trip is also a hunting platform for them. और इनफैक्ट हमारे लास्ट ट्रिप में एक आए भी थे इन्वेस्टर HPCL से, तो उनको 7 दिन उन स्टार्टअप के साथ रहने का मौका मिला, जो भी मतलब मैच्योर स्टार्टअप थे लेट्स से। तो आप 7 दिन अगर स्टार्टअप के साथ रहेंगे ना, तो आपका डिसीजन बड़ा जल्दी हो जाएगा कि इनको पैसा देना है कि नहीं। अदरवाइज आपको 7 महीने भी लग जाएंगे, आप डिसाइड नहीं कर पाए शायद। तो दोस थिंग्स आर आल्सो देयर।
So you know, और it's डिसाइड startup. करने के बाद भी रिग्रेट्स बहुत होगा अगर Correct. 7 दिन साथ में रह ली ना, तो ज्यादा अच्छे से जान लेंगे दोनों स्टार्टअप भी और इन्वेस्टर हाँ सही बात है. और उठते हैं टाइम पे नहीं, सोते हैं टाइम पे नहीं, कितना सीरियस है, घूमने मिला तो भाग गए, इन्वेस्टर को छोड़ दिया, सब पता चल जाएगा, सारा काला चिट्टा खुल जाएगा ट्रिप में. मतलब आप किसी को अच्छे से जानना चाहते हैं ना, आप एक ट्रिप करो उसके साथ, आप यू विल गेट टू नो द पर्सन वेरी वेरी वेल एक्चुअली, एंड देन यू कैन मेक फास्ट डिसीजन. तो ये है. अच्छा ठीक है, चलिए तो पिवटिंग पे थोड़ा सा और आते हैं. तो हमने तो ऐसा किया पिवट, we didn't disregard anything, but we just added more products, so that's how we pivoted. तो ये है. तो आई थिंक ये एक गुड क्वेश्चन ये आता है कि when can we pivot. तो इस पे थोड़ा सा let's discuss and maybe take Saurav's opinion also. So Saurav, I think तुमने जैसे बोल दिया कि you said कि you just took fast decision, this that, but to a general public I think we cannot just say ना जब जो मन करे कर लो, ये कर लो, वो कर लो. तो उनको हम लोग क्या एडवाइस कर सकते हैं तुम्हारे हिसाब से, लाइक उनको कब पिवट करना चाहिए लेट्स से. देखिए पिवटिंग को हम इजी टर्म्स में बोलते हैं चेंजिंग द बिजनेस मॉडल, और लेमैन टर्म्स में अगर आप एक स्टूडेंट से या एक बिगिनर से, नोविस से पूछेंगे कि भाई क्यों बिजनेस मॉडल चेंज करोगे, तो 2-3 कारण ही होंगे कि पहला मैं कर नहीं पा रहा हूँ, दूसरा बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तीसरा मेरे पास पैसा नहीं है. तो आई थिंक ये थंब रूल एक एक्सपीरियंस्ड और एक मैच्योर्ड स्टार्टअप के लिए भी है. हमने जब पिवट किया तो हमने पिवट इसलिए किया क्योंकि हमें, जैसे हम ई कॉमर्स कर रहे थे, तो ई कॉमर्स में हम पैसा कुछ कमा नहीं रहे थे, जो पैसा आ रहा था वो सारा जा रहा था. या जो जोमेटो वाला मॉडल था वो हमने कर तो दिया, हमने लिस्ट कर दिया, लेकिन कस्टमर को नहीं ला पाए और कस्टमर को शायद प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा होगा. तो ये जो बेसिक थंब रूल्स है, ये दिस विल होल्ड ट्रू इन एनी लेवल ऑफ स्टार्टअप, एनी लेवल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अ स्टार्टअप. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि this model is not working for you, you are not able to attract a lot of traffic on the website, or you're not able to attract a lot of customers, आपका customer acquisition cost बहुत ज्यादा high है, you are making a lot of money, अगर आप एक funded startup हो तो investors के point of view से वो ना top line दे रहा है ना bottom line दे रहा है, तो all these factors जब नहीं हो रहा है तो it is better to pivot into a model जो आपको कुछ ना कुछ तो दे रहा है, which is making you sustain. So I think this is what I have to say. Okay, sure. ठीक है. एक चीज और आता है, I think we can ask I think youngsters. So Aman, are you there? Aman, Ujjwal, anyone? They have started abhi, Yes, like sir. career counseling thing, right? So Ujjwal, let's say कि you are relying on people's attraction, let's say, like I mean if they are attracted to your events and all, then only you Yes, will be sir. motivated to continue. अगर वो event में नहीं आएंगे तुम्हारे, तो you will get very demotivated at times. तो अगर तुमसे हम ये पूछे कि how many like when is the time when you will give up actually on this कि ये नहीं चल रहा है, like according to you, मतलब कितने लोग आना बंद कर दे या नहीं आए, या 100 लोग हमेशा आते जाए, या I mean have you thought of anything? या बेसिकली सर एक्चुअल में मुझे, हम लोग को अभी क्या लग रहा है, मैं वो सिचुएशन आपको बता रहा हूँ. और जो अभी हम लोगों का प्लान था वेबिनार जीडी, बेसिकली मेरा प्लान था, मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ सर, 5 मिनट टाइम ले सकता हूँ? बताओ प्लीज. तो मैं अपने से इंस्पायर हुआ था कि जैसे मैंने विशाल सर को भी बोला, सर मैंने आपसे बहुत कुछ सीख लिया कम्युनिकेशन, या मैं एक दिन बोल भी दिया था बड़े इमोशन में होके कि सर मैं इन डेप्थ हूँ, आपका मतलब कि मेरी आपका एहसान पूरी लाइफ रहेगा. मैंने उतना पे अपने टीचर्स को नहीं किया जितना, मुझे कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, मैंने बहुत कुछ दे दिया आपको, मैंने कुछ भी नहीं दिया, आपने बहुत कुछ दे दिया. तो इन सब चीजों से फिर सीखने को क्या मुझे मिला कि हम थोड़ा बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, या अपने सो कॉल्ड टीचर्स को छोड़ेंगे, या सो कॉल्ड अपने एरिया के लोगों को छोड़ोगे, तो तुम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो मेरे एरिया में आज भी वही है, मैं किसी को अपना बताता हूँ या आपके जीडी में लाता हूँ या इंग्लिश में लाता हूँ, वो आते हैं एक दिन फिर छोड़ देते हैं. तो मुझे लगा कि यार एटलीस्ट हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए तो कुछ है ही नहीं. जैसे कि आपने वैसे बोला कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाता हूँ, आईआईटी, आप एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी तो आके देखिए ना,
कि वहां के बच्चों की क्या अपॉर्चुनिटी है, वहां के बच्चों को क्या चाहिए। तो मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए तो कोई कुछ सोचता ही नहीं है और वो आज भी डंप है। इवन मैंने एक इंटरव्यू टाइप में मैंने लिया था, हम लोग को अभी इंटर्न चाहिए था, एक राजस्थान का बंदा था, एमबीए किया हुआ था, उनको इंग्लिश मुझे भी नहीं आती बहुत अच्छी, बट इतना है कि मैं बोल लेता हूँ, इंग्लिश नहीं आती इट्स ओके, पर उनके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं उनसे बहुत ज्यादा जूनियर हूँ, मैं तो अभी 3rd ईयर में अभी जस्ट गया हूँ, वो मेरे से सही से बात तक नहीं कर पा रहे थे। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि हम एटलीस्ट बड़े बड़े कॉलेजेस के स्टूडेंट से, बड़े बड़े लोगों से, इंटेलेक्चुअल पर्सन से कम्युनिकेट करवा सके और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एंजाइटी फियर जो रहता है, मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि कम्युनिकेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, कि एटलीस्ट तुम्हें इंग्लिश आए या ना आए, बट एटलीस्ट तुम किसी के सामने कॉन्फिडेंस वे में बोल सको, या तुम्हारे अंदर जो है पैशन, मैं जो बोलता हूँ कि मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैं सेल्स के लिए बनाऊं, कि लाइक मुझे लोगों को कन्विंस बहुत कर लेता हूँ, फिर मैंने देखा यार मैं फीमेल्स को तो कन्विंस कर पा रहा हूँ, मेल को सही से कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि फीमेल मतलब जेंडर वो होता है कि जल्दी कन्विंस हो जाती हैं एज कम्पेयर टू मेल, वो नॉर्मल होते हैं। तो मैंने ये सब देखा, कंज्यूमर बिहेवियर सीखा, और जो मैं 10 साल मतलब कि अभी मुझे फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा से था, तो मुझे अभी महसूस हो गया कि 10 साल बाद जो मैं एंटरप्रेन्योर बनने वाला था, मुझे अपनी सब पता चल गया, मेरे पास कोई टाइम मैं देने वाला हूं नहीं फैमिली को, और मुझे किसी की कदर भी नहीं थी कि अब कि मुझे बस अपना ही देखता था, मेरा अपना आइडिया था। तो मैंने यही सोचा कि हम ऐसी कम्युनिटी वगैरह बिल्ड करके, और जैसे उनको डांसिंग का शौक है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक प्लेटफॉर्म दे देंगे कि वो डांस करे, कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं। और किसी को राइटिंग का शौक है तो अपनी वो नॉवेल लिखे हम पब्लिशर वगैरह से पब्लिश करवा देंगे, इस टाइप का हमारा प्रोजेक्ट था। और दूसरा प्रोजेक्ट ये था कि हम एटलीस्ट कम्युनिकेट करवा सके। 11th-12th में मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने अपना पैसा खूब बर्बाद किया है माँ बाप का, कहीं सीए करने लगता तो कहीं कुछ करने लगता था। तो एटलीस्ट दे जस्ट नो कि मतलब कि तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो, कि तुम्हें आईआईटी भी जाना है, एक बार विशाल सर से पूछ तो लो आईआईटी जाके उनको कैसा लगा था। ऐसा तो नहीं कि उनकी लग रहा था कि मतलब कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, आईआईटी से पहले ही मेरी जिंदगी थी, बट ट्रूथ और लाइज, और लोगों को लगता है सीए कर लेंगे तो मेरी बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है, मेरे ख्याल से नहीं होती है। 6-7 लाख का एवरेज पैकेज होता है, तो 6-7 लाख में कुछ होने वाला नहीं है आजकल। तो ये टाइप का मेरा थोड़ा बिजनेस मॉडल था थ्रू वर्चुअली, और यहाँ पे कोई कॉस्ट भी नहीं जनरेट हो रही है। नहीं ये तो ठीक है, ये तो तुमने प्रोडक्ट वाइज बता दिया, ये अपना इंटेंशन बता दिया, बट एक प्रोडक्ट का सक्सेस इज बेसिकली कंज्यूमर्स, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास लेट्स से सो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली लैक ऑफ कंज्यूमर इज द रीजन व्हाई वी पिवट एक्चुअली, ठीक है। चेंजिंग द बिजनेस मॉडल या जो भी है, कस्टमर नहीं है या बहुत कम कस्टमर है, या वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, या मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है लेट्स से, तो यही सब रीजंस होते हैं। तो बेसिकली इट्स लैक ऑफ कंज्यूमर्स, और लेट्स से लैक ऑफ पेड कंज्यूमर्स फॉर दैट मैटर, ठीक है। जहाँ पेड कंज्यूमर, when the paid consumers are less, there is a high chance that you will have to change things, otherwise you cannot sustain in the long run. 2-4 महीने 6 महीने कर भी लिया, तो अभी जैसे you are doing, I think you are getting 20-30 people in your let's say events, right? But let's say कि ये मतलब let's say, और अभी कुछ पैसे भी नहीं ले रहे हो, right? So let's say later you might be charging 50 rupees, 100 rupees from them and things like that, and especially when you graduate and all. So are you looking at some numbers to continue this, or are you like अभी उतना सोचा नहीं है? सर हम लोग का तो यही था कि एटलीस्ट मिनिमम 20-30 लोग तो आएंगे ही, थ्रू मार्केटिंग या थ्रू लोगों का ये वो। करेक्ट। फिर प्रॉब्लम क्या आने लगी हमें कि वेबिनार और ये ऑनलाइन सेशन इतने खुद ही चल रहे हैं कि अब किसी को ऑनलाइन आने का मन नहीं कर रहा है। लाइक मैं भी आजकल जीडी में बहुत कम वगैरह आता हूँ, तो हमारा प्लान था कि अब थोड़ा सा स्विच करते हैं कि ये सब जीडी वीडी तो हर कोई करवा रहा है, अब हम लोग कुछ थोड़ा मॉड्यूल वगैरह चेंज करते हैं, तो हम थोड़ा उस पे काम करने जा रहे हैं। तो ऐसा हमारा है, क्योंकि जैसे कि आप भी जीडी करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं, वेबिनार्स बहुत ज्यादा होते हैं रहते हैं नॉर्मल सेशंस वगैरह में, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता वेबिनार्स में, और क्योंकि किसी को ज्ञान चाहिए नहीं होता है, मतलब मेरे ख्याल से। और हम लोग भी यहाँ पे वेबिनार वन में भी हो जाता है, इसलिए भी थोड़ा सा ये भी रीजन है। और प्लस यहाँ पे ही देखिए जो जीडी में आप 10-12 लोग मेरे ख्याल से मैक्सिमम है, तो
यहाँ पे भी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और यहाँ पे तो भी इतनी अच्छी सारी बातें वगैरह होती है, तो मेरे ख्याल से जीडी में भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग ये भी सोचे कि थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल टाइप में करें, तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। लोगों को थोड़ा बाहर के लोगों से मिलने का मजा ही नहीं आता, बस अपने एरिया में रहने का शौक है। तो हम थोड़ा सा इसको चेंजेस करने के सोच रहे हैं कुल मिला के ये। करेक्ट नहीं, आई थिंक ये आई मीन दिस इज अ वेरी आई मीन इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, एंड दिस बिहेवियर इज नॉट कांस्टेंट. This behavior changes with time, changes with situation, and you know you have to be one step ahead of the people कहीं ना कहीं. ठीक है, मतलब उसी के साथ. Yes Atul sir, you want to add? तो I just wanted to add कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस में भी हो, चाहे जो जीडी हो, चाहे ये मीटिंग्स और रेगुलर कोशिश कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी इज द की. कि दिमाग में बैठ गया तो आपके 10 लोग आए या 100 लोग आ गए, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर कंसिस्टेंटली 1 वीक, 1 महीना, 1 साल चल गया ना, तब आइडिया में दम है. और अगर कुछ समय के बाद आपने हिम्मत छोड़ दिया कि कोई आ नहीं रहा है या ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो कभी कभी देखा होगा कभी कभी 30-30 लोग भी आते हैं, कभी कभी 20 लोग आते हैं, बट 8 लोग भी आए, इवन 4 लोग भी आए, बट कंसिस्टेंसी इज द की. अगर आप कुछ लंबे पीरियड तक करते हो ना, तो जो कंटेंट है जीडी, जो आपके जीडी 10 का या आपका लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग का, तो कंटेंट तो डेवलप हो रहा है ना, और बाद में जिनको फुर्सत होगी तो वो यूट्यूब पे भी देख लेगा या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी देख लेगा. तो कंसिस्टेंसी और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यही मैं अमन के लिए, बाकी लोगों को भी कहूंगा कि वो छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए कि आज थोड़े कम लोग आए, 4 ही लोग आए, अगले दिन कल 20 थे, तो वो हिम्मत नहीं आना है. आपको कंटिन्यू करना है. कभी कभी हो सकता है कि कोई नहीं आया, फिर भी आप कंटिन्यू करो, आप मोनोलॉग ही एक स्पीच देकर खत्म कर दो, लेकिन कंसिस्टेंसी रहना चाहिए. और सर एक और मैंने ह्यूमन बिहेव महसूस किया है इन सब चीजों से, कि लोगों को अपने एज के लोगों से लर्न करने का ज्यादा रहता है. लाइक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन भी बहुत लोगों को नहीं पसंद होते हैं. लाइक मुझे ही बहुत इंटेलेक्चुअल, मतलब कि जैसे एक रिदम में अपनी स्टोरीज बताते जा रहा है कोई पर्सन, तो मेरे ख्याल से आजकल किसी को शौक नहीं है. और तो ऐसा होता है कि लोग क्यूट होने लगते हैं, डायरेक्ट हटो हटो हटो, चलो 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 चलो. तो ये भी सिचुएशन है कि आप एंटरप्रेन्योर को लेके सौरभ सर की तरह ले आओ. मैं सौरभ सर से आज बात किया, तो पहली बार पर्सनल लेवल पे मैंने बात किया, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसे बंदा होना चाहिए, और बाद में मैं भी एंटरप्रेन्योर वगैरह बनूंगा तो सौरभ सर से जैसे बनूंगा, खुद ही पर्सनल मैसेज वगैरह कर रहे हैं वगैरह टाइप में. तो इस टाइप से चीजें लोगों को पसंद है कि मतलब पर्सनल टच महसूस है, और अपनी एज लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि बच्चे हैं तो हमें बच्चे टाइप के आदमी चाहिए. काफी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल ले आओगे बच्चों के लिए, तो मेरे ख्याल से वो आपकी बेवकूफी है और कुछ नहीं. ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, आई गेस सम पीपल. और एक्चुअली एक और चीज है, आई थिंक वन एडवाइस आई विल गिव यू इज डोंट जनरलाइज थिंग्स टू सून. अभी 2-4 इवेंट में ही डोंट थिंक कि ये रवि. यस प्लीज. ये उज्जवल है, राइट? उज्जवल है. हाँ, यस हाँ. तो उज्जवल इस पॉइंट पे जस्ट ये जो हम लोग कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं, तो उसमें एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है जो आप मेंशन नहीं किया, फिर मतलब उस पॉइंट को मैं लाना चाहता हूँ कि बहुत हद तक 90% ये भी होता है कि जिस आदमी को जिस चीज का भूख रहता है ना, वो उस तरफ ही अट्रैक्ट होगा. लिखते कि अगर आपके एज में अभी आपका जो डिजायर है, वो उस टाइप के इवेंट्स आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे. ये मोर ओवर हर चीज में है. अगर एग्जांपल देकर बताऊं मैं, तो आप देखो कि आपके ही मूड पे, लेट्स से अभी आपका पार्टी का मूड है, तो आपको पुराने गाने सूट नहीं करेंगे, फिर आप सुनना नहीं चाहेंगे, आपको पार्टी वाले ही गाने उस टाइम पे अच्छे लगेंगे. लेकिन कभी आप अकेले बैठे हो या फिर कभी थोड़ा मतलब मूड फ्रेश करना है, तो एक पुराने गाने भी आपको उस टाइम पे ज्यादा सूट करेंगे. सो दिस इज लाइक जिस टाइम जिसका अंदर से जो भूख है ना, इन टर्म्स ऑफ नीड, कि जो वो चाहिए उस टाइम पे, दैट काइंड ऑफ थिंग्स अट्रैक्ट मोर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर बिहेवियर. करेक्ट. तो व्हाट रवि इज सेइंग इज कि यू नो जिसका जैसा डिजायर है या जो भी है, दे गेट अट्रैक्टेड. आई गेस अभी एक और प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि बोला गया ना, बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट्स हो रहे हैं, एंड आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट का मोरल इज क्वाइट लो राइट नाउ. So you know lot of students are just thinking, you know, let's take a break kind of like
let me not spend too much time learning, let's not think about learning, because there is online class happening by college also, and then they have to do assignment, and then on top of that they have to attend some other online events, ye hai wo hai. So people are saying let me just take a break and sleep, or maybe watch some movies instead of just getting knowledge throughout the day. तो वो भी एक reason है. और एक और problem हो जा रहा है कि because there are so many online events and then each online event is accessible by the whole world pretty much, right? So now it's getting to like a fatigue kind of, right? कि इतने सारे events हैं and each of those events is accessible to each one of them. पहले offline events होता था, so it was more of a, like the radius used to be confined, that okay, अगर I am कलकत्ता में है तो कलकत्ता के ही लोग जाएंगे, कलकत्ता के आसपास के लोग आएंगे, etc etc, right? बट अब तो आई एम कैलकाटा का ऑनलाइन इवेंट है तो पूरे इंडिया से लोग आ सकते हैं, इंडिया के बाहर से भी लोग आ सकते हैं. सो देयर आर मोर चॉइसेस नाउ, so that's also one reason why getting that crowd is not so easy in the internet online format. तो ये भी है. तो बट आई थिंक एक और चीज है, बट हैविंग सेड ऑल दिस, जैसा अतुल सर ने भी बोला ना, अभी ई लर्निंग या जो भी ऑनलाइन इवेंट या समथिंग है, the people who will stay consistent, will be seen post COVID also. क्योंकि बहुत सारे लोग दम तोड़ देंगे, जैसा अतुल सर ने भी बोला, और I see that happening a lot, कि क्या करे, आ रहे हैं 4 ही लोग आ रहे हैं, 5 ही लोग आ रहे हैं, let's not do this, ये वो blah blah blah. Demotivation is at its peak. So because of this demotivation, lot of things are going to shut down within a year. तो अब अगले 2021 में जो लोग बचेंगे, they will be like the really highest level of patience kind of. अतुल सर, do you agree? बिल्कुल. अल्टीमेटली पेशेंस का गेम होता है स्टार्टअप. बहुत सारे स्टार्टअप हर दिन स्टार्ट होते हैं और 99% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, बट किसी को गूगल और अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल या इन्फोसिस बनना है, तो उसके लिए उसको बहुत साल तक लॉस में, बहुत सारे रिडिक्यूल में, लोगों की हंसी सुन रहे हैं, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं. तो परसिस्टेंस बहुत की है कि आप जो टिक गया ना, तो कुछ साल तक टिक गया तो फिर वो तो लॉन्ग टर्म से टिकेगा, बट कुछ महीने में कोई बैठ गया, कुछ वीक्स में कुछ बैठ गया, तो मतलब कि उसमें लॉन्गिविटी थी ही नहीं. और जिसने फाउंडर जो थे, फाउंडर ने लॉन्ग टर्म के लिए उनका वो पैशन नहीं था, ये शॉर्ट टर्म हॉबी था. कुछ नहीं करें तो चलो एक स्टार्टअप कर लेते हैं. जिस चीज के लिए आप अपना कुछ समय दे सकते हो, बहुत सारा करियर ऑप्शंस. या जैसे सौरभ दयाल ने चश्मा का दुकान खोला, तो ही वाज वर्किंग इन अ बिग कंपनी पेटीएम, बट स्टार्टअप में उनको बहुत समय कभी कभी लगा होगा कि क्या करने में उससे ज्यादा पैसा वहां कमाता था या ज्यादा कुछ था, लेकिन फिर भी मैं करूंगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्टअप में आपने एक दुकान खोला, गराज में खोला, तो दुकान में जाकर आपको शटर खोलना भी आप ही को, बंद करना आप ही को है, और कोई कस्टमर नहीं भी आया, बट आपको दिन भर दुकान में बैठना है, बंद नहीं कर सकते. ये जो फैक्टर है ना, वही इम्पोर्टेंट होता है, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं. करेक्ट. और ये सारे बिजनेस में भी है, शोरूम जितने होते हैं, मॉल्स जितने होते हैं, रोज खुलते हैं, irrespective of the number of customers, and eventually you will see they are flooded with customers. Yeah, I think बहुत सारे ऐसा भी होता है, malls they get flooded with customers on the weekends, but ऐसा नहीं है कि बाकी दिन खोलेंगे नहीं, वो बाकी दिन भी खोलेंगे वो, just to stay with that consistency and things like that. और यही पे लाइट चमकते रहेगा. जैसे न्यूयॉर्क सिटी फेमस है, तो वहाँ का लाइट साइन बोर्ड हमेशा चमकते रहना चाहिए. Correct. Yeah. So okay, Ravi, do you have any comment on this, or okay, I think we are last 5 minutes. Nandan, maybe you have some comment. You are also working on some products, Nandan. So I think it's actually it's very the thing that we discuss is very beneficial to the starters, people who want to start. Yes. And when to change things and when not to change things. And shutter, like the Atul sir what he said, that we have to open the shutter and every day, but it doesn't prevent you from adding new products in your shop. Yes. Right. Yeah. तो सौरभ से भी कुछ कमेंट ले लेते हैं. सौरभ, डू यू एग्री टू दिस? ये शटर उठाना ही जरूरी है हर दिन. तो आज हम लोग थोड़ा अपने क्यूबिकल्स में खाना खा रहे थे, तो सब कुछ
गिर गया और हमारा जो ऑफिस बॉय है ऑब्वियसली ही लीव्स एट 6-6:30 पर पार्टी चल रही थी 10 बजे तक। तो जब मैं वापस जाने लगा तो मैं पैंट्री गया, वहां से मैंने वो उठाया मॉप और मैं मॉप करने लग गया। तो मुझे देखते ही सारे एम्प्लॉइज आ गए, वो अरे लोग आ मॉप गया। करने लग गए। तो करना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं है। नहीं हमें और तो ये शर्म नहीं बहुत आती है। नहीं और ये बहुत सही चीज बोला सौरव ने कि इफ यू आर लेट्स से फाउंडर लीडर एट द वेरी हाई लेवल, इफ यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स ना सब लोग करेंगे। बट अगर सौरव दयाल ने ऐसा होता है कि उसने नीचे वाले को बोला है तुम साफ कर दो, मैं जा रहा हूँ घर, थोड़ा ये है वो है, या प्लीज साफ कर दो, तो थोड़ा सा ना ऑफेंडिंग हो जाता है कभी कभी। बट वर्किंग टुगेदर ना पीपल फील कि दैट इंक्लूसिवनेस वाला फंडा कि नहीं ये भी कर रहा है हम भी करेंगे, सो पीपल फील गुड अबाउट दिस ऑल दिस। जो ये तो लीडर होता का ही जो है ना काम यार। होता है ना, तो लीडर का काम होता है कि किसी के आने के पहले सबसे पहला लाइट ऑन वही करे और जाने के बाद भी सबसे पहले लाइट ऑफ भी वही करे। ये जो लीडर्स का ये रोल होता है कि सबसे पहले बत्ती भी वही जलाते हैं, झाड़ू जरूरत तो झाड़ू भी देते हैं, और शाम को जाते समय कचरा फेंकना है तो कचरा भी वही फेंकते हैं और बत्ती ऑफ भी वही करते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो स्टाफ होते हैं कि जो लाइट ऑन हो गया तो टाइम पे आए, 9 बजे 10 बजे फिर टाइम पे चले गए। बट अगर आप रियली में एंटरप्रेन्योर हो और वो लीडर हो तो आप सबसे पहले आओगे और सबसे अंत में जाओगे। मैंने बड़े बड़े लीडर्स में भी देखा है कि उनमें ये खास बात होती है। करेक्ट। और सेलिब्रिटी लोग उल्टा होते हैं, सबसे लास्ट में आएंगे और सबसे पहले भाग जाएंगे। चलिए ठीक है, आई थिंक एनी लास्ट कमेंट, वी लास्ट 1 मिनट कुछ कमेंट, या और वी कैन डिस्कस डिसाइड अ टॉपिक फॉर टुमारो। सौरव, डू यू हैव अ टॉपिक इन माइंड फॉर टुमारो? पता नहीं, आई एम क्लूलेस राइट नाउ। अच्छा, और कोई anyone wants to put any case study or something as preference? सर यूनाइटेड वो नेशन। सर एक था, मैं अब कभी करवा दीजिएगा, मैं बस बोल रहा हूँ सर, ह्यूमन रिसोर्स पे, टीम बिल्डिंग पे, कि किस टाइप के लोगों को होना चाहिए अपनी टीम में, Hiring, let's किसको। say. हाँ, इट्स अ हायरिंग Startup टाइप। hiring, let's say. हाँ ठीक है, अच्छा स्टार्टअप टॉपिक है। हायरिंग, या Startup hiring कि how to यस create that core team or यस सर, यस initial first, let's say first 20 employees. यस सर, एग्जैक्ट। This can be good. Yes, Sejal, you have comment? Yes, sir. Maybe related to public relations. Public relations. Public relation of a company. Okay. Yes. ये किया था एक बार हमने, but ठीक है, we can I think this can come under मैंने नया ज्वाइन किया है। हाँ, yes हरी जी बताइए। हेलो। Yes. मैंने एक या स्कैम्स के रिगार्डिंग मैंने एक सजेशन दिया था, IL एंड FS। तो आई डोंट नो मतलब कितना IL एंड FS के जो तो स्कैम आपके पास है ना उसका रिसर्च पूरा? मुझे नहीं पता है सर। तो मुझे अकेले कोई बोलना पड़ेगा, बाकी लोगों का नॉलेज लेना चाहता हूँ इसमें से। ठीक है, करते हैं उसको भी। ठीक है, चलिए आई थिंक कल के लिए हायरिंग पे बात कर लेते हैं और फिर इसको भी देखते हैं, कल या परसों देख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, एक मेरा भी है सर, एक हाँ केस बोलो। स्टडी ऑन पीटर थियल। ओके, श्योर। ठीक है, और ठीक है, आई थिंक 4-5 तो आ गए सजेशन, तो अगला तो 4-5 दिन का हो गया। ठीक है, देन वी कैन हैव सजेशंस फॉर नेक्स्ट वीक अगेन। ओके चलिए, ओके देन 11:31। ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, सी यू टुमारो।